بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ۔ دریائے سندھ، دریائے چناب اور ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، نشیبی علاقے زیر آب۔ سرگودا، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بھکر، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور رحیمیہ خان کے اضلاع متاثر ہونے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کی طرف سے فلڈ الرٹ جاری، دفعہ 144 نافذ۔ دریاؤں کے اطراف سیر و تفریح پر پابندی، انتظامیہ کو سیلابی صورتحال سے نبردآزما ہونے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ، دریائے سندھ، دریائے چناب اور ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب۔ سرگودا، ڈی جی خان، بہاولپور، مظفر گڑھ اور دیگر اضلاع متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، دریاؤں کے اطراف سیر و تفریح پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے، چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دوسری جانب لیا میں دریائے سندھ بپھرنے لگا، دریا میں پانی کی سطح میں اضافہ، سیلابی ریلے کے باعث نشیبی علاقوں میں نقصانات بڑھنے لگے۔ موزہ خان والا میں فصلیں اور گھر میں پانی کی زد میں آ گئے ہیں۔ ایکسین محکمہ انہار نے نشیبی علاقوں کا دورہ کر کے سٹڈ بندوں پر جاری کام چیک کیا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے زاہد سرفراز۔ لیا میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، درمیانے درجے کے سیلابی ریلے کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب۔ کوٹ سلطان کے نشیبی علاقے موزہ خان والا میں فصلیں اور گھر پانی کی زد میں آ گئے۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے مکینوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ سیلاب نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، امداد کے منتظر ہیں۔ بہت ساری مشکل تھی، فصل تیلن چاولن اور گنا جتنے بھی فصل ہیں سارے مرد ہیں۔ بہت ساری پریشانیاں آمن ونجن واسطے مشکلات تھیں پن لوگوں کو۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ چارہ ختم ہونے سے جانوروں کی خوراک بھی ختم ہو رہی ہے۔ پانی بدتا ویندے سارے نقصان بہت زیادہ تھیندے ویندن، مال منگی سب شے یعنی کہ اگے لگی ودی، اسی جگہ بھی نہیں ہے جتے رہائش لوں۔ دوسری طرف ایکسین محکمہ انہار اسد شفیق نے حفاظتی بندوں کا جائزہ لیا۔ اسد شفیق نے کہا کہ حالات کنٹرول میں ہیں۔ بالکل اللہ کا شکر ہے، تمام بند بہتر حالت میں ہیں۔ جہاں بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم فوری ٹیک اپ کرتے ہیں، 1 منٹ کے لیے بھی ہم غافل نہیں ہیں۔ اور ابھی جو 3,82,000 کے قریب پانی پاس ہوا تھا چشمہ سے، اور ابھی تونسا براج پہ پہنچ چکا ہے اور بڑا سیفلی یہاں سے پاس ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ خدا نخواستہ مزید بڑھے گا تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ مینیج کریں گے بہتر انداز سے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق چشمہ براج سے 4 لاکھ کیوسک پانی کا سیلابی ریلا بھی آ رہا ہے، جو کل تک لیا میں داخل ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ دریائے سندھ نے کروڑ لال ایسن میں تباہی مچا دی، سیلابی پانی یونین کونسل بسیرا کی آبادی میں داخل، فصلیں زیر آب۔ متاثرین اپنی مددات کے تحت مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ آج رات 4 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرے گا، نشیبی علاقوں کے مکین خوف میں مبتلا ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے محمد آصف خان۔ دریائے سندھ میں کروڑ لال ایسن کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، سیلابی ریلا آبادی میں داخل ہو گیا۔ یونین کونسل بسیرا کے مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت مال مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے، راستوں کی بندش سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کل تو پانی تھوڑا تھا، لیکن اب جو ہے نا یہ مزید آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور مزید بھی اس کے بڑھنے کا جو نا تھوڑے بہت امکان لگ رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ باقی یہ جو لوگ یہاں سے نقل مکانی اور جانوروں کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، جبکہ انتظامیہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے۔ کسی بھی وقت بڑا ریلا سب کچھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب فوری نوٹس لیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف خان، روہی، کروڑ لال ایسن۔ ملتان میں ضلعی اور باسا انتظامیہ کی نااہلی، انتظامیہ بارش کے 24 گھنٹے بعد بھی سڑکوں سے پانی کا نکاس نہ کرا سکی۔ چوک، شاہ عباس، حسین آگاہی اور شاہین مارکیٹ سمیت کئی علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں۔ ملتان میں ضلعی اور واسا انتظامیہ کی بہترین صفائی کے دعوے ٹھس ہو گئے۔ شہر میں بارش کے 24 گھنٹے بعد بھی کئی سڑکوں پر پانی جمع رہا۔ انتظامیہ سڑکوں سے پانی کا نکاس کرانے میں ناکام۔ سڑکوں پر جمع پانی کی وجہ سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا رہا۔ شہریوں کی گاڑیاں پانی میں بند ہو گئی اور شہری گاڑیوں کو دھکے لگاتے انتظامیہ کو کوسنے لگے۔ کاروبار بالکل نہیں ہے، بالکل ہم بے روزگار ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی گاٹ پانی میں چل کر نہیں آتا۔ ہمیں یہ 30 سال سے یہ پرابلم آ رہی ہے، اس چوک شاہ باز کے اوپر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ بڑی مشکلات ہوتی ہے، اس میں بہت تنگی ہوتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بندہ ٹینشن میں زیادہ آ جاتا ہے،
लिहाजा मेहरबानी कर लें, हुकूमत से अपील है। बारिश के बाद गल्ला मंडी रोड, शाहीन मार्केट, खूनी बुर्ज, हुसैन आगाही, रशीदाबाद और चौक शाहबाद समेत शहर के कई इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिश के पानी से गुजरने पर मजबूर शहरियों का कहना था कि हल्की सी बारिश भी हो जाए तो ये सड़कें नहरें बन जाती हैं। इंतजामिया को मानसून के हवाले से बेहतर इकदाम करने चाहिए ताकि सड़कों पर जमा पानी किसी नाखुशगवार हादसे का बाइस न बन सके। यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत अरसे से इस तरह का माहौल ख़राब है। इंतज़ामिया को चाहिए कि ये रोड ठीक करें। वासा का इंतज़ाम जब तक सही नहीं होगा ये पानी कैसे ख़त्म होगा। ये 7 वाले रोड पे 16-16 फुट के गड्ढे बने हुए हैं, रात भी 3 बंदे गिरे हैं उसमें। अरे लोडर इधर फंस जाते हैं, कोई नहीं सुनता। कल से जितनी बारिश आई है कोई नहीं सुनाई दे देता। बड़े मुश्किलात है, कई गरीब गिर गए, कई मोटरसाइकिल वाले गिर गए, कोई नहीं सुनता। ज़ेरे आब सड़कों पर ट्रैफिक में फंसे शहरियों का कहना था कि इंतजामिया फौरी होश के नाखुन ले ताकि मानसून की मजीद बारिशों से कोई नुकसान न हो। शहरियों का कहना है कि छोटी सी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इंतजामिया को मानसून के हवाले से पहले से ही इकदाम करने चाहिए थे ताकि शहरियों को इन मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन वसीम रियाज के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनशियात और नाजेबा वीडियोस बरामदगी केस। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बनाई गई आला सतही तहकीकाती कमेटी के सामने पेश हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब ने तहकीकाती पॉइंट्स बारे बताया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर का कहना था कि कमेटी पूरी ईमानदारी के साथ हकाइक जमा कर रही है। इस वक़्वा में यूनिवर्सिटी की बच्चियों और बच्चों का इखलाकी मोराल गिर गया है। तहकीकाती कमेटी हकाइक को नजर रखते हुए फैसला या रिपोर्ट देगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनशियात और नाजेबा वीडियोस बरामदगी केस। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब तहकीकाती कमेटी के सामने पेश हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब ने तहकीकाती पॉइंट्स बारे बता दिया। कमेटी पूरी ईमानदारी के साथ हकाइक जमा कर रही है। इस वक़्वे में यूनिवर्सिटी की बच्चियों और बच्चों का इखलाकी मोराल गिर गया है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मुलाजमीन से मुनशियात और नाजेबा वीडियोस मिलने का मामला। वाइस चांसलर ने इस हवाले से सारा मलबा पुलिस की गलत तफ्तीश पर डाल दिया है। कहते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी को जानबूझकर हदफ बनाया गया है। पुलिस ने सियासी शख्सियात की एमा पर यह इकदाम उठाया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अपने इदारे के दिफा में सामने आ गए। प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वो हर फॉर्म पर खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। मंशियात और नाजेबा वीडियोस का मामला बनाकर यूनिवर्सिटी की नेक नामी को दागदार किया गया। जामियात की तालबात को कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम किया गया। वो पूछते हैं कहाँ हैं वो हजारों वीडियोस। पुलिस कोई तो सबूत पेश करे। अगर ऐसी कोई शिकायत थी तो हमें भी एतमाद में लेते। यूनिवर्सिटी में सजा और जजा का पूरा निजाम मौजूद है। आपकी बेटियां तालिबात सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी शोहरत बदनाम की गई। आइस और नारकोटिक्स को खुद साख्ता मुद्दई बनकर 5500 या हजारों नाजेबा वीडियोस का कहकर हमारी बच्चियों और बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक करने की कोशिश की गई। आइस और नारकोटिक्स का नाम लेकर हजारों बेटियों के जिनसी वीडियो स्कैंडल्स की बात की गई। कहां हैं वो हजारों वीडियोस? पुलिस लेकर आए। वाइस चांसलर ने कहा कि पुलिस ने सियासी इमा पर इदारे को निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने नाम निहाद स्कैंडल को बुनियाद बनाकर कुछ तालबात और स्टाफ से पैसे लेने की कोशिश कर रही है। इस फर्जी मामले पर स्टाफ और तालबात को हिरासत किया जा रहा है। हम सबूत आला हकाम को पेश करेंगे। पुलिस हमारी है, हम पुलिस से तवक्को करते हैं कि वो कानून की मुहाफिज होगी, हमारी इज्जतों की मुहाफिज होगी। लेकिन जो कुछ हमें नजर आया है, जो कुछ आपने कहा, मैं समझता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। जहां एक तरफ यूनिवर्सिटी की भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए, वहां से इस मामले की ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन सी शख्सियात हैं जो उसके पीछे हैं और कुछ जाती अना, बुग़्ज़ और किसी नफ्सियाती मसले की वजह से उन्होंने अपने खिते के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया। प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब का कहना था कि यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम तुलबा व तालबात की तादाद 65,000 के लगभग है। कुछ लोगों को जामिया की तरक्की हजम नहीं हो रही। जामिया इस मामले पर मुलव्विस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। जामिया के 2 मुलाजमीन को हनी ट्रैप किया गया और हसास इदारे के साबिक मुलाजिम पर दबाव डाला गया। शफाफ ट्रायल का हक सबको है और हम शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर।
खानेवाल में 6 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरते हुए पुराना खानेवाल में शफायत खान डाहा के डेरे पर इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए थे। तफसीलात के लिए देखेंगे मोहम्मद नदीम मुगल की ये रिपोर्ट। खानेवाल में 6 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक थी, जो शुहदाए करबला को पुरसा देते रहे। जुलूस की सिक्योरिटी चेक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद और डीपीओ राना उमर फारूक जुलूस में पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हमारा खानेवाल में 6 मुहर्रम का एक बड़ा तारीखी जुलूस निकलता है, यहाँ से बरामद होता है। हम यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ डीपीओ, मेरी एडीसीआर, एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमेटी मौजूद हैं। हम लोगों ने हर तरह से सफाई सुथराई के इंतजाम किए हैं। जहाँ रोड रिपेयर होने वाला था वो हमने 1 मुहर्रम तक सारा पैच वर्क भी करवा दिया। हमने अपने जो शुरका हैं इस जुलूस के, उनके लिए साफ पानी पीने का इंतजाम भी किया म्यूनसिपल की तरफ से। बाकी भी हर तरह से हम उनकी सहूलत फराहम कर रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से जो अपनी इबादत है वो परफॉर्म करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हैं वो हुए हुए हैं। हमने जितने भी रास्ते सील करने थे उनको कल रात ही हमने टाइमली आके सील कर दिया था, ताकि सुबह के वक्त चूँकि अर्ली मॉर्निंग ये जुलूस बरामद हो जाता, उससे पहले इस तरह के तमाम सिक्योरिटी अमूर जो है वो तकमील पा चुके हों। मातमी जुलूस के लाइसेंसदार मरकजी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया मीर बाबर तरमजी का कहना था कि मुहर्रम उल हराम सबर, इस्तकलाल, भाईचारे और अमन का पैगाम है। मातमी जुलूस कुली बाजार, गप्पी वाला चौक, अकबर बाजार और अयूब रोड से गुजरता हुआ अयूब चौक पहुंचा, जहां नमाज ज़ुहरैन भी अदा की गई। जिसके बाद जुलूस रेलवे रोड पर हैबर कोर्ट से गुजरकर शाम 5:30 बजे पुराना खानेवाल शफात खान डाहा के रिहाइशगाह पर इताम पजीर हुआ। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के दौरान हर तरफ लंगरो न्याज का सिलसिला जारी। हवेली मुरीद शाह में हर साल की तरह 6 मुहर्रम को अज़ादाराने इमाम हुसैन के लिए वसी न्याज का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन का कहना था कि कोई भी महरूम नहीं रहता, सब लंगर खाकर जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे फराज रमजान। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के दौरान हर तरफ लंगरों न्याज का सिलसिला जारी। हवेली मुरीद शाह में भी हर साल 6 मुहर्रम को अज़ादार इमाम हुसैन के लिए न्याज का वसी एहतमाम किया जाता है। मुंतज़मीन का कहना था कि कदीमी न्याज कई साल से जारी है, अल्लाह ताला का अता किया हुआ है, इसी की राह में खर्च करते हैं। जिनके नाम किया है वही करवाते हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है, हमारे आबाओ से चली आ रही है ये, और बस हम दुआ है ये मौला ऐसे चलाए रखे, अज़ादार आते हैं हर साल। मौला की न्याज है, कदीमी न्याज है, हमारी चल रही है, मौला इसको कबूल करते हैं। ये मौला के हमने वसीले से शुरू हमारे वालिद साहब करते हैं, अब इसको आगे हम लेके चल रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो आगे इसी तरह बढ़ती रहेगी। खिदमत है मौला की मुहर्रम की न्याज। ज़ायरीन का कहना था कि वो न्याज करने हवेली आते हैं, कोई भी महरूम नहीं रहता, सब लंगर खा कर जाते हैं। मौला की न्याज है, कदीमी न्याज है, हमारी चल रही है, मौला इसको कबूल करते हैं। ये मौला के हमने वसीले से शुरू हमारे वालिद साहब करते हैं, अब इसको आगे हम लेके चल रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो आगे इसी तरह बढ़ती रहेगी। खिदमत है मौला की मुहर्रम की न्याज। अज़ादारान की बड़ी तादाद ने इमाम बारगाह हवेली मुरीद शाह में लंगर खाया। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर की कदीमी इमाम बारगाहों में से एक हवेली मुरीद शाह भी है। अंदरूने शहर में मौजूद ये इमाम बारगाह 7 दिहाइयों से आज़ादारी का मरकज है। हर साल यकुम मुहर्रम उल हराम से इस्मा इमाम बारगाह के अहाते में मजालिस का एहतमाम किया जाता है। इस इमाम बारगाह की तारीखी हैसियत के बारे में रिपोर्ट करेंगे ओनाबाद। मुल्तान में इमाम बारगाह हवेली मुरीद शाह का शुमार शहर की कदीमी इमाम बारगाह में होता है। लोग दूर दराज से इस इमाम बारगाह में आज़ादारी के लिए आते हैं। अंदरून शहर में इस इमाम बारगाह की बुनियाद सैयद मुरीद शाह ने आज से 70 साल पहले रखी थी। ये इनकी जाती हवेली थी, जिसे बाद में हवेली मुरीद शाह का नाम दे दिया गया। यकम मुहर्रम उल हराम से इस इमाम बारगाह के अहाते में मजालिस का एहतमाम किया जाता है, जहाँ मरसिये, कसीदे, मनकबत और सोज़ो सलाम पढ़े जाते हैं। हवेली मुरीद शाह दरअसल हमारे एक बड़े पुराने बुजुर्ग थे, उनका नाम मुरीद शाह था और ये यहाँ एक हवेल बनी हुई थी, हवेली सी थी, यहाँ पे वो उनकी मतलब है वो मलकियत में थी। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इसको जो है इमाम बारगाह के लिए वक्फ कर दिया था। इस वजह से इसको मुरीद शाह, उनके नाम पे इसको हवेली मुरीद शाह का नाम दिया गया है और आज तक उन्हीं के नाम पे ये सिलसिला चल रहा है। इमाम बारगाह में शबीए झूला हजरत अली असगर रखा गया है, जहां बे औलाद जोड़े आते हैं और झूले की निस्बत से मन्नतें मांगते हैं। इस इमाम बारगाह में दीगर ज़ियारात भी मौजूद हैं, जिनमें से शबीए अलम गाजी अब्बास और शबीए ताबूत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। 6 मुहर्रम को यहाँ पे शबीए झूला बरामद होती है, जो शहजादा अली असगर से मतलब मंसूब है, ज़ियारत है। 7 मुहर्रम को यहाँ पे
शबीह ताबूत बरामद होता है जो शहजादा कासिम से मंसूब है और उसकी बाकायदा उसकी बरामदगी होती है। 8 मुहर्रम को अलम हज़रत अब्बास अलमदार यहाँ से बरामद होता है जो एक ज़ारत की सूरत में ये तमाम इमाम बारगाह में उसकी ज़ारत कराई जाती है। अंजुमन यादगार हुसैनी हवेली मुरीद शाह ने इस इमाम बारगाह की तामीर और हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इमाम बारगाह के अहाते में खवातीन की मजलिस का भी एहतमाम किया जाता है। मुल्तान शहर की कदीमी इमाम बारगाह में से हवेली मुरीद शाह आज भी अज़ादारों की अज़ादारी का मरकज है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। चन्नू में एलपीजी माफिया बेलगाम दुकानदार मनमाने नरखों पर एलपीजी फरोख्त करने लगे। शहरी महंगे दामों गैस खरीदने पर मजबूर हो गए। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। चन्नू में एलपीजी माफिया शहरियों को लूटने लगा। एलपीजी सरकारी रेट पर 177 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि शहरों गिरदोनवा में 260 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घरेलू सिलेंडर सरकारी रेट से 400 था 600 रुपए महंगा फरोख्त किया जाने लगा। गैर कानूनी एलपीजी गैस फरोख्त की जा रही है शहर में और शहरी आबादी में, इसकी रोकथाम की जाए हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है। इसके अलावा जो एलपीजी गैस पे ओवर चार्जिंग है ये ख़त्म की जाए। तकरीबन 50 से 60 रुपए ओवर चार्ज किया जा रहा है। हमारी डीसी खानेवाल से गुजारिश है कि ये जो रेट्स हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रेट्स हैं उन पर फरोख्त किया जाए। मियां चन्नू में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं नजर नहीं आते, जिसकी वजह से शहरें महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में जगह जगह एलपीजी की गैर कानूनी रीफिलिंग भी जारी है। सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं। तहसील इंतजामिया भी शायद किसी बड़े हादसा की मुंतजिर है। शहरियों ने इस मामले पर आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहर में कायम गैर कानूनी गैस रिफिलिंग प्वाइंट्स आए रोज हादसात का सबब बनते हैं। यहाँ घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर्स में गैस भरने की इजाजत देना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जरूरत इस अमर की है कि गैस रिफिलिंग के तमाम गैर कानूनी प्वाइंट्स को फौरी बंद करवाया जाए। कैमरामैन तलहा राजपूत के साथ आसिफ खान नियाजी, रोही, मियां चन्नू। मुल्तान में मेपको अमले की नाअहली के बायस बिजली का बोसीदा निजाम ठीक ना हो सका। कचहरी रोड पर तारों के बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। रिपोर्ट करें राना बिलाल। मेपको अमले की नाअहली या गफलत, बिजली का बोसीदा निजाम ठीक नहीं हो सका। मेपको इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। मुल्तान की अहम शाहरा कचहरी रोड पर तारों के बेहंगम जाल शहरियों की जान का अजाब बन गए। बारिशों के मौसम में नंगी तारों से करंट लगने के वाकयात में इजाफा हो गया। परेशानी का सामना हो रहा है, बहुत इंतजामिया आ नहीं रही। खंबे के आने बहुत सारे जंगला बना हुआ है और ये है ना कई बार शिकायत की है तो कोई भी इंतजामिया नहीं आ रही, तो लिहाजा इनको है ना जल्दी से जल्द ठीक किया जाए। दुकानदारों का कहना था कि तारों के गुच्छों में अक्सर स्पार्किंग भी होती रहती है। अक्सर औकात दुकानों के शटर्स में भी करंट आ जाता है। मेपको अफसरान को कई मरतबा शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जल्द से ये सही होने चाहिए, शटल वगैरह जब खोल दे करंट आ जाता है। शहरियों ने मुतलका अफसरान से मुतालबा किया है कि झूलती तारों के बेहंगम जाल फौरी तौर पर ठीक किए जाएं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कमर कस ली। सेक्रेटरी HED मोहम्मद अल्ताफ बलोच ने मुल्तान में मेवाकी तर्ज की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद देखिए शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुतहरिक। सेक्रेटरी HED मोहम्मद अल्ताफ बलोच ने होम इकनॉमिक्स कॉलेज बराए खवातीन में पौधा लगाकर मेवाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और कॉलेज स्टाफ मौजूद था। सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ बलोच का कहना था कि जनूबी पंजाब के 915 कॉलेजेस, 3 तालीमी बोर्ड्स और यूनिवर्सिटियों में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हमने तमाम कॉलेजेस के अंदर ये हमारा एक मूवमेंट स्टार्ट की है कीरा मायावी की के उसी टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हम प्लांट्स लगा रहे हैं और 5 लाख का हमारा है ना जी टारगेट जी सर 5 लाख का टारगेट है और इंशाल्लाह हम इसको इस साल ना सिर्फ लगाएंगे बल्कि इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे, इसकी सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करेंगे। प्रोफेसर का कहना था कि आलमी माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शजरकारी बहुत जरूरी है। शजरकारी मुहिम में सिविल सोसाइटी और शहरियों का ताउन नागुज़ीर है। We know that trees जो हैं they are the main source to provide oxygen. And as far as education is concerned, we know that what's education? It's an investment in the future. ठीक है, as far as to nurture the mind of the students is concerned, it's something that is very challenging. And as far as plantation is concerned, so what is this? It's also investment in the future. हम
زیادہ سے زیادہ تعداد میں پودے لگائیں، ہر شخص اپنے حصے کا پودا لگائے. اس سے ایک تو بارشوں میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ درجہ حرارت میں کمی ہوتی ہے، اور ہم یہی پلان جو ہے اس کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہوگا. میواکی طرز کی شجرکاری پائیدار اور سود مند ہے، جس سے ماحول کو خوشگوار بنانے میں مدد ملے گی. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان. اس رپورٹ کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے صرف روہی.